Welcome back, students. I am Gunjan, going to teach you science, and today's my topic is photosynthesis. So, what is photosynthesis? The word photosynthesis means light, and synthesis means to combine something. So, we can say photosynthesis means something combining in the presence of light. This is what we studied till that. अब तक हमने बचपन से यही पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश में खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. एंड लाइट इज नॉट आपने की एलईडी लगाई, टॉर्च लगाया, लाइट प्रोवाइड की और खाना बन गया. लाइट यानी टेम्परेचर, दिस इज ओनली प्रोवाइडेड बाय सन, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. So in the process of photosynthesis, there is conversion of light energy into chemical energy. The process is done by autotrophs. Yes, I told you in my previous classes that autotrophs are the plant which prepare their food by their own. By which process? It is called photosynthesis. By photosynthesis, autotrophs prepare their food by their own. कैसे बनाएंगे वो अपना खाना खुद से? जब उनमें क्या होना चाहिए, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. Autotrophs are the plants who prepare their food by their own only in the presence of chlorophyll. Without chlorophyll they cannot prepare their food. Clear? Without chlorophyll they cannot prepare their food. Chlorophyll is the green color pigment which found in the plants. The plants which has green color pigment have only quality to produce their food by their own, and the process is called photosynthesis. As the word suggests, photosynthesis means there is something going to synthesis or to combine in the presence of light. This is only done by the presence of sun. Solar energy is required for the process of photosynthesis. अब कभी मैं बोल रही हूँ कि क्लोरोफिल चाहिए और कभी मैं बोल रही हूँ सोलर एनर्जी चाहिए. Don't distract from the path. When we are going to prepare our food, have you seen your mamas in the kitchen when she going to something cook? She needs some ingredients. What type of ingredients they are? When she is going to prepare the roti or chapati, she needs some flour. She needs flour. Yes. So by the help of flour she prepare chapati. Yes. But she required something else. What type of things she need? She needs some water. Yes or no? फॉर प्रिपेयर चपाती, रोटी बनाने के लिए सिर्फ फ्लोर यानी आटा आपके पास हो तो रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना. क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए. उसकी डो रेडी करने के लिए डो बनाते हैं, उसी से तो रोटी बनती है, पराठे बनते हैं. यस. और अगर डो बन जाए तो कच्चा आटे की डो खा लोगे? नहीं खा लोगे ना. इट इज़ हार्मफुल. क्या चाहिए? कुछ टेम्परेचर चाहिए. टेम्परेचर यानी हीट चाहिए. किसी भी प्रोसेस से बनाओ लेकिन हीट चाहिए. इतने सारे जो चीज़ें हैं अवेलेबिलिटी कराती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. वैसे ही सेम ईयर, सेम इन द प्लांट देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स. विदाउट वन ऑफ दैम, विदाउट द दैम plant cannot prepare their food by their own. These are called substance in which presence plants do their process of photosynthesis. As we know, all organisms need food for the growth and energy. And from where the food comes? The food comes for living organism means human being and animals. The food comes from the plants. Yes, the food comes from the plants. Even our whole life depends upon the plants. When we take birth, we eat food. This is come from plants. We wear clothes. This is come from plants. We use furniture. This is also come from plants. Our whole life is depend upon the plants. So plants are the base of our life. Without plant we cannot survive. Even
Without respiration we cannot survive. And the oxygen gas which is must required for our cells, it is also come from the, very good, it is also come from the plants. So for done our all activities related to our life process comes from the plants. Plants are our base of the life. So green plants prepare their food by their own. Only green plants have the quality to prepare their food by their own. They are called autotrophs by the process of photosynthesis. What they did? The plant में क्या होता है बच्चों? प्लांट्स में 4 इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ. ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अभी आपको समझ के चलना है. सबसे पहले होता है आपका लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी को क्या बोल सकते हैं आप? सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं. सोलर एनर्जी जो सन से मिलने वाली एनर्जी होती है, सनलाइट जो होती है, इसे सोलर एनर्जी बोलते हैं. आजकल आप देखते हो सोलर एनर्जी के प्लांट्स भी चल गए बिजली बचाने के लिए. सन से मिली हुई एनर्जी. सन भी क्या प्रोवाइड कराता है? टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है. वो जो टेम्परेचर है वो हमारे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि देखो बारिश के दिनों में आप देखते हो ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो पौधे गल जाते हैं. बहुत गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा धूप निकलती है तो भी पौधे सूख जाते हैं. तो सोलर एनर्जी चाहिए. वो भी कैसी चाहिए? एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है. मॉडरेट मीन्स मीडियम टेम्परेचर. ये प्लांट की नीड है. देखो कुछ बच्चे ज़्यादा खाते हैं, कुछ बच्चे कम खाते हैं, कुछ बच्चे पानी ज़्यादा पीते हैं, कुछ बच्चे रोटी ज़्यादा खाते हैं. सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है. वैसे ही प्लांट्स की क्वालिटी होती है. जैसे आप चावल उगाओगे तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, गेहूँ उगाओगे तो मीडियम चाहिए. वैसे ही प्लांट्स की क्वालिटी है. ये प्लांट पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी लाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए. ये प्लांट्स का अपना क्राइटेरिया होता है. जिस क्वालिटी का प्लांट्स होता है उसके हिसाब से उसे लाइट, पानी, इन सब की नीड होती है. क्लियर? वेरी गुड. सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज लाइट एनर्जी and second one is carbon dioxide. Second one is carbon dioxide. It is very important. Why? Plants consume carbon dioxide, means they intake carbon dioxide from the external environment, while human beings, animals excrete carbon dioxide. और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एनवायरनमेंट में रहेगी तो हम जो ऑक्सीजन लेंगे ना वो कम पड़ जाएगी. सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नजर आएगी चारों ओर, which is very harmful to human beings. That is why global warming and you listen many over acid rain. This is all of this occurs by the enhancement in carbon dioxide in the external environment. Fine. So plants do important role to consume this external or environmental carbon dioxide and convert in oxygen. They intake the carbon dioxide and use the carbon molecules to change in their food and excrete the oxygen, which is very important for human beings. It is our life. Without oxygen we cannot survive. Oxygen is the gas which is intake by human beings or animals. Without oxygen we cannot live. इतना तो हम सब जानते हैं, सबने देखा है. ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते. तो ये ऑक्सीजन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एनवायरनमेंट में आती है वो प्लांट्स के थ्रू आती है. प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देते हैं. किस में चेंज कर देते हैं? दे कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन. तो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड वन क्या होता है? क्लोरोफिल. अच्छा, क्लोरोफिल ऐसा सब्सटेंस है दैट इज ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन द लीफ. विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो प्लांट्स में खाना खुद नहीं बनेगा. सम ऑफ द वैरायटी स्पेसीज ऑफ प्लांट कैन नॉट हैव क्लोरोफिल. They also depend upon others that are called heterotrophs. I told you in my next lecture what is heterotrophs and what are the variety. How could they survive? We are also heterotrophs. We also survive. We are depend upon others. So chlorophyll is must. Okay. Next is water. Water और minerals. पानी और खाद जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में से. मिट्टी में होता है पानी. मिट्टी में पानी कहाँ से आता है? हम ऊपर से भी देते हैं, रेन के थ्रू भी आता है, मॉइस्चर भी होता है अवेलेबल. ये सारा मिट्टी में होता है. मिट्टी से हमने पढ़ा था 6th क्लास में स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों.
प्लांट के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था स्टेम, और स्टेम क्या प्रोवाइड कराता है? स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट में पानी की सप्लाई होती है, जगह जगह खाना पीना सप्लाई होता है ना, जाता है। स्टेम कैसे बिहेव करता है पता है आपको? खाना पानी इसमें कैसे जाता है? आप स्ट्रॉ पीते हो कोल्ड ड्रिंक से, वेन एवर यू टेक अ सिप ऑफ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम योर स्ट्रॉ, व्हाट डिड, क्या हुआ वहां पे? वहां पे एक सक्सेशन पुल, खिंचाव वाला तनाव क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है वो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ जाती है। वैसे ही यहाँ पे एक सक्सेशन पुल काम करता है और स्टेम से हर पार्ट में प्लांट में पानी की सप्लाई हो जाती है। 6th क्लास में मैंने जिन बच्चों की क्लास ली थी, आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सप्लाई ऑफ वाटर, दैट हाउ कुड वाटर रीच फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, आई टोल्ड यू। क्लियर? So there are 4 ingredients, that is light energy or solar energy, that is carbon dioxide, third one is chlorophyll, and water। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन 4 इंग्रेडिएंट्स के बिना, इन चारों सब्सटेंस के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। They required must by the plants। प्लांट्स क्या करते हैं? बेसिकली इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, खाना बना लेते हैं और खाना को कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की फॉर्म में जमा कर लेते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस प्लांट में कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। आपकी बुक में ही ये डायग्राम दे रखा है। देखो प्लांट में क्या होता है, लीफ होती हैं। लीफ इज द वीआईपी ऑर्गन ऑफ द प्लांट। लीफ जो होती है ना, वेरी वीआईपी मीन्स वेरी स्पेशल है ये प्लांट के लिए। क्यों है? बिकॉज लीफ कंटेन्स, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ देयर आर टाइनी पोर्स, टाइनी ओपनिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। देयर आर सेवरल टाइनी ओपनिंग विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। दिस टाइनी पोर्स हेल्प्स लीफ फॉर gaseous exchange, for exchanges of gas. As we studied, plants intake carbon dioxide and excrete oxygen। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, किसके थ्रू निकालते हैं? देयर आर सेवरल टाइनी ओपनिंग और टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। दैट टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। वी कैन नॉट सी दीज टाइनी पोर्स naked eyes, they can see by the electron microscope, and this is the structure of stomata. Stomata is the plural form. Actually it if we can say it is a stoma. Stoma is the singular form of stomata. This tiny form called stomata, and stoma is the single one. Clear? So what does stomata do? Stomata covered by the guard cells. As you can see in the diagram, there are guard cells. They look like lips. They do roll like lips. हमारे होठ होते हैं ना, लिप्स खोले अपन ने तो खाना अंदर, और जैसे ही खाना अंदर तो लिप्स क्लोज, कि खाना बाहर ना गिर जाए। कहाँ जाना चाहिए? अंदर जाना चाहिए, प्रोसेस होगा। तो ये लिप्स की तरह काम करते हैं आपके गार्ड सेल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल्स? गार्ड सेल stirs it, the stoma will opens, and if the guard cell flash it, then stoma will be closed. क्लियर? तो ये स्टोमेटा का रोल समझ में आया। स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। दूसरी चीज मैंने पढ़ाई आपको क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये एक जो आपका डायग्राम दे रखा है, ये किस चीज का डायग्राम है पता है आपको? दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लीफ। पत्ती को बीच में से काट दें इस तरीके से, जो लेटरल डिवीजन होता है, इसे काट के हम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारे जो डायग्राम है ना, हम ऐसे नहीं फील कर सकते, ऐसे नहीं देख सकते। दे कैन ओनली सीन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर which cannot be seen by electron microscope. So
there is chlorophyll. It is chlorophyll. The chlorophyll found in the mesophyll cells of the leaves. The chlorophyll found in the mesophyll cells of the leaves. Clear? The layer is called mesophyll cells and the chlorophyll found in the mesophyll cells of the leaves. The upper layer is called epidermis. This is the intersection part of the leaves. आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रोमा भी दिखाई दे रहे हैं आपको लीव्स में. ये बाहर की अपर सरफेस है. ये क्या है? स्ट्रोमा रखती है. स्ट्रोमा क्या करेंगे? गैसियस एक्सचेंज. किससे कवर हो रहे हैं? ये गार्ड सेल से. गार्ड का मतलब जानते हो ना, जो सुरक्षा करे. जैसे ही नहीं पानी भेजना, बाहर गैस भेजनी, गार्ड्स ने क्या किया? गेट बंद कर दिया. और अगर किसी को अंदर आने देना है, गार्ड खोल देंगे. वैसा ही काम ये गार्ड सेल्स करते हैं. क्लियर है? अब ये जो प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करते हैं. देखो इस इक्वेशन से देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है. इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या लिख रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव, specially highlighted chlorophyll containing cells of the leaves. Why so? Because if plant do not have chlorophyll, I told you again and again, if plant do not have chlorophyll, it cannot prepare their food by their own. It can only when the presence of chlorophyll, which is found in the mesophyll cells of the leaf. Clear? So during photosynthesis, chlorophyll containing cells of the leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. और ऐसे इक्वेशन देखो, मैंने 6th क्लास में, पता नहीं आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज द शॉर्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनीथिंग. जब हम कोई चीज़ लंबे बोलते हैं, पैराग्राफ में बोलते हैं. अब साइंटिस्ट और जो होते हैं, जब जितना बड़े होते चले जाओगे उतना क्या होता चला जाता है? टाइम कम होता चला जाता है और आप डायग्राम बना के अच्छी चीज़ें शो कर सकते हो. इसलिए इक्वेशन बनाई है. इक्वेशन किस लिए बनाई है? ताकि चीज़ों को अच्छे से इजीली, ग्राफ बनाते हैं मैथ में तो इजीली समझ में आता है ना, वैसे ही इक्वेशन बनाते हैं साइंस में, जिससे इजीली समझ में आती है चीज़ें. शॉर्ट फॉर्म होती है ये, और इसे बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हो कुछ भी. जैसे यहाँ लिख रहा है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वस टू, ये एरो क्या है? इक्वस टू, यानी कन्वर्ट हो गया. इक्वस टू का मतलब क्या है? 2 और 2 मिलके बन गए 4, यानी 2 और 2 क्या हो गए? कन्वर्ट. किस में कन्वर्ट हो गए? 4 में. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ग्लूकोज. जो ग्लूकोज फिर से स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? स्टार्च. स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में जमा हो जाता है. सो वी कैन से स्टार्च इज द फूड ऑफ प्लांट्स. और इस सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है, वो बाहर निकल जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिसे कौन ले लेता है? हम कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिख सकते हैं? CO2 प्लस H2O. ये किसका फॉर्मूला है? केमिकल फॉर्मूला H2O, पानी का. और जो किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में. कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ग्लूकोज. ग्लूकोज को पता है कैसे लिखते हैं? C6H12O6. वैसे 7th क्लास में इतना डीपली नहीं है, आई टोल्ड यू. ऑक्सीजन को लिखते हैं कैसे? ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2. O2 इज कॉल्ड ऑक्सीजन. क्लियर? ये सारा जो प्रोसेस होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? ये जो एरो के ऊपर नीचे हमने कुछ लिखा है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कैन यू सी इट? दिस इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो अब अगर इक्वेशन को पूरा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. क्लियर? आटे में पानी को मिलाया और प्रोवाइड किया सम टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस की, देन इट कन्वर्टेड इनटू चपाती. लाइक सेम हियर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बोलते हैं.
और ये ग्लूकोज फर्दर स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में जमा हो जाता है। अब ये स्टार्च की फॉर्म में यहाँ फ्लोएम टिश्यू में जमा रहता है। जाइलम और फ्लोएम नाम के दो टिश्यूज होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम। फ्लोएम जो खाना इकट्ठा रखते हैं। क्यों इकट्ठा रखते हैं प्लांट्स में? बिकॉज प्लांट्स डू नॉट स्पीक। वो आपको बोल के नहीं कहेंगे हेलो कम हियर गिव मी सम फूड, प्रोवाइड मी फर्टिलाइजर, प्रोवाइड मी फूड वाटर, नहीं कहेंगे ना ऐसा। तो वो क्या करते हैं, सीधे सच्चे इंसान, जैसे ही आप उनको पानी वानी सब देते हो वो खाना बना के अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उस खाने को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वो खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। अगर आप 1-2 दिन उन्हें खाना प्रोवाइड नहीं करा हो तो वो उसी खाने से अपना काम चला लेते हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन दैट? So if we want to define photosynthesis, we can define during photosynthesis, water is combined with carbon dioxide in the presence of light and chlorophyll to produce glucose and oxygen. This is the way by which autotrophs prepare their food by their own. I think it is clear to you people. फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या क्या मिलता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ फूड फॉर द प्लांट फॉर देयर ओन। और अगर प्लांट्स खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? तो ये पूरी जो लाइफ का प्रोसेस है, हमारा फूड चेन जो आपने पढ़ा है, ये सारा प्रोसेस तभी पॉसिबल है ओनली when it is possibility to prepare their food by their own by the autotrophs, means the plant have quality to making their food by their own. We cannot have the quality. We are heterotrophs. We depend over plants. Thank you.